Hello, assalamu alaikum and welcome to the pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं A Sports and 10 Sports. It's another day at the ICC Men's T20 World Cup in the United Arab Emirates और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक और डबल हेडर. 2 मैचेस आज खेले जाएंगे अबू धाबी में, इसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले मैचेस पे नजर डाल लेते हैं. आज के 2 मैचेस, पहला मैच जो आप देखेंगे अबू धाबी से बराह रास्त, तो वो है बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का. South Africa versus Bangladesh. This is the first game that we'll be bringing to you. South Africa hunting for that semi-final spot. Bangladesh, well, they have to go back home with some kind of, good news, basically. दूसरा मैच जो आपकी खिदमत में है वो है पाकिस्तान बामुकाबला नामीबिया. पहली दफा तारीख में पाकिस्तान और नामीबिया एक दूसरे के साथ T20 खेलेंगे. So this is going to be interesting. पेविलियन में मेरे साथ मौजूद पाकिस्तानी legends, superstars, people who made us very happy over the years. Ladies and gentlemen, सबसे पहले the Sultan of Swing, the undisputed best all-rounder, left-handed all-rounder in the world, Mr. Wasim Akram. Welcome, Wasim. The next is the toe-crushing and demoralizing batsman around the world, a sensational man when he ran in and bowled those fiery spells, Mr. Waqar Younis. Hello, Waqar. Waqar can't believe that I'm being so nice to him today. With that is a cool, composed, and always very serious, and we're trying to loosen him up here on this show, but it's been a little bit of a challenge, is the fine and the most successful Pakistani Test captain, Mr. Misbah-ul Haq. Misbah, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. बाज नहीं आ रहे तुझे? आ जाएंगे कभी ना कभी, तो आप भी आ जाएंगे और भी आ जाएंगे. बाज तो आना ही है किसी ना किसी दिन. And finally, ladies and gentlemen, the young, energetic, dashing, fiery Wahab Riaz. Assalamu alaikum. Gentlemen, 2 games at hand here. Yesterday, of course, we saw what had gone down in Sharjah. कल का जो मैच था शारजा में दोस्तों, श्रीलंका का और इंग्लैंड का. England, of course, clearly showing that they are a very different side and the side to be reckoned with. They are the team that everybody's got their eyes fixed on, and everybody thinks that they're going to be in the final, Wasim. Who? Good morning. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. Morning. अस्सलाम वालेकुम. हाँ, क्या पूछ रहे थे? मैं कह रहा था इंग्लैंड की बात कर रहे थे. कल उन्होंने जिस तरह से Yeah. I mean, of course, we spoke about England yesterday a lot. कितनी complete टीम है और उन पे हमने ये भी बात की थी कि उनकी वीकनेस क्या है. कल थोड़ी सी वीकनेस, हल्की सी उनकी आर्मर में एक चिंक नजर आया. बट इन जनरल ओवरऑल फील्डिंग ले लें, बैटिंग ले लें, बॉलिंग ले लें, एंड T20 में मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्रेसिव एटीट्यूड ले लें, वो इनका कंसिस्टेंट है. Absolutely. Waqar, though I think that Sri Lanka had an opportunity there yesterday, that they let it slip by. From their death overs to everything that Sri Lanka did yesterday, they could have done it better. They had an opportunity, they had them in a corner, and then they let it go. Yep, 100%. सबसे पहले तो आप ये बताएं कि how are you feeling in this shirt? Because हमने तो पहले पहन रखी है. You were the first time you playing. I am actually absolutely. अंदर क्या feeling आ रही है? Absolutely very proud to be wearing this shirt. Very proud, especially the fact कि मैं आप चारों के साथ यहाँ पर बैठा हूँ. The 4 of you have actually worn this shirt and represented Pakistan and made us all very proud around the world. Thank you. So we as a nation are very grateful for your services. We thank you for your services to our country and for sports lovers all around the world. I didn't mean that. I didn't ask you to start praising us. But I know I did. I wanted it because it is special for me. I'm sitting in the middle of 2 W's and then an additional W and then a very serious M. क्योंकि मिसबा ने भी अभी recent time तक पहनी रखी, वहाब तो खैर अभी भी पहनी हुई है. But we are wearing after 20 or 20 years, just under 20 years. Yeah, probably. So More probably. time just sort of went Flies. like this. It feels really great again. You know? It is. So good to be back in greens and supporting Pakistan. World Cup में जिस तरीके से पाकिस्तान खेल रहा है, it's great to see this. और दूसरा सवाल था आपका मैं डरा हुआ श्रीलंका था का. कि आप ये तो नहीं पूछ रहे कि आप इसमें कैसे महसूस कर रहे हैं. थोड़ी फंसी सी टी-शर्ट. मैंने कहा कहीं इस तरफ ना आ जाए, मामला इस तरफ ना आ जाए. I was about to say that, Vicky. And मैं फिर दिल्ली में मैं क्या साह भी ले लो. हम लोग जब ये अंदर शर्ट्स पहन रहे थे ना, तो फखर ने पूछा कि मैं
ये शर्ट पहनूं यार, थोड़ी टाइट लग रही है। मैं कहा पहन लो पर सा ना लेना। सांस रोका हुआ मैंने, पेट खींचा हुआ है। ये बेसिकली लाइक टू थैंक द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी ने हमें शर्ट्स भेजी हैं और हम सबको कस्टमाइज करके भेजी हैं। सो एवरीबॉडी हैज देयर नंबर। सो लेट मी, मैं क्विकली आपको बता चलूं, मिसबा जरा आप घूमे, अब आप पूरा तो नहीं घूम सकते, मेरी तरफ घूम दे सर मुझे। मिसबा की शर्ट के पीछे नंबर 20 दूसरी तरफ, वो कह रहा है मेरी तरफ, मिसबा 22 उस तरफ। ये देखें जनाब, मिसबा की शर्ट है, बहुत ही अच्छे प्रोफाइल में। मिसबा has got 22. Wasim bhai is got, this is a really nice bow. There you go. That's Vaz 3. I've got F Alam 76. Bakar. Whack 99. He used to whack those batsmen. And we've got Vicky at 47. Why 47, Wahab? I don't know. Yeah, that was the number given to me when I debuted. I thought maybe 1947 Pakistan. I don't know. ki Now azadi ka I saal, can, maybe. you know, now I can Some number people it. believe in numbers. There's a thing called, what is called, numerology. Yeah, something like that. So Gautam Gambhir from India, वो बड़ा पर्टिकुलर था। उसको जब भी अपने कमरे में उसको 9 चाहिए होता था। It could be 4, 5, 1, जो भी अब मैथ कर रहे हैं कि उस नंबर में 9 होना बड़ा जरूरी है उसको, अदरवाइज वो रूम ही था लेता। हमारे इधर 23 बहुत मशहूर है। That's really 23, weird. why? I don't know, कामी भाई का नंबर 23 था, Okay. उमर का 96 था, फिर उमर 23 पे आया। Okay. Now they both going back to their I own suppose it's number. more how you, what you believe. I don't believe in numbers as much. Why is your number your respect? Mine is very simple. There's no science behind it. There's no story behind it. It's my date of birth. It's related, but same here. What's yours? 22। नहीं मतलब क्यों है, कोई खास वजह, बस ऐसी? बस ये नंबर असाइन हुआ है। अब ये एक जिसको कहते हैं इत्तेफाक हो सकता है, वो मेरी बेटी है तो वो कहती है कि 22 मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 2 दिसंबर है और बेटी की 2 मार्च है। सो वन इज फॉर मी, वन इज फॉर मी। That's very nice. What is for you, Wack? मेरा सर कोई भी नहीं है, सच तो कोई नहीं है। I was hoping कि one day I'll get 99 one day बैटिंग में, ऐसा हुआ नहीं है, but so Wakar Yunus. 99 इसलिए दिया ना कि और 99 आपका रह नंबर जाता क्या था। है? 76, my year of birth. So 1976, so I put 76. So you're what? 5. 45. Jeez, it's getting on a bit. Yes, we are all Should we get back to Sri we are Lanka? all aging. should we get back to Sri Lanka? We should get back to Sri Lanka. Actually, you know what? इतनी बातें करनी है, छोड़ें श्रीलंका को, सीधा ब्रेक पे चलते हैं। दोस्तों लेते हैं एक वक्फा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं पवेलियन, मैं हूं फखर आलम, यह है स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। और मेरे साथ पवेलियन में मौजूद पाकिस्तानी सुपरस्टार्स, लेजेंड्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह हक एंड वहाब रियाज, एंड ऑल ऑफ अस आर वेयरिंग आवर कलर्स। पाकिस्तान के जो ऑफिशियल जर्सी है वो हमने पहनी हुई है। इसके बारे में हम अब से कुछ देर पहले बात कर रहे थे, सबके नंबर्स के बारे में और नाम के बारे में। वी हैव गॉट अ स्पेशल पैकेज हियर फॉर यू, आइए देखते हैं। शर्ट नंबर मेरा 56 है, सबको पता है, और राज ऐसा कुछ नहीं है। पहले मुझे सबसे पहले मिला था 33, तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ऑप्शन दी कि आपने 33 रखना है कि 56 रखो, तो मैंने 56 रखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने रख लिया, और उसके साथ फिर अब तक वही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, वही जर्नी उसी के साथ चल रही है। पहले इतना इम्पोर्टेंट नहीं था नंबर्स, लेकिन अब मेरा क्रिकेट जर्नी का पार्ट बन गया, और कोशिश करता हूँ कि इस नंबर का वैल्यू रखूँ, और इस चीज़ को मैं जितना ऊपर रख सकूँ परफॉर्मेंस दे के, और इस नंबर का एक जो होता है ना कि प्राउड फील करता हूँ कि यार ये मेरे बैग पे ये मेरा नंबर है, तो एक खुशी होती है। और बिल्कुल इसी से रिलेटेड मैं एक ब्रांड भी लॉन्च कर रहा हूँ, जिसके भी यही है 56 BA। मेरा शर्ट नंबर 16 है, और स्टोरी तो बिल्कुल है, क्योंकि पहली जो मेरा पहली इनिंग्स हुई थी कैरियर की हार्ड बॉल में, उसमें मैंने 16 रन किया था। उसके बाद पता नहीं लकी हो गया, क्योंकि मेरे बर्थडे में भी 6 आता है, डेट ऑफ बर्थ में मेरी वाइफ के डेट ऑफ बर्थ में भी 6 आता है, और मेरी बेटियों की दोनों डॉटर्स के डेट ऑफ बर्थ में भी 616 बहुत इन्वॉल्व है, तो इसलिए 16 हो जाता है वो जो ना मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। पहले मेरा नंबर था शर्ट का नंबर 40, और शाहीन भी चले गया था, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अफ्रीदी 10 नंबर पहनूँ, क्योंकि जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया तो लाला को देख के मेरा फेवरेट है, लेजेंड है पाकिस्तान का। तो मेरा यही था कि मुझे जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ तो मेरा भी ये शर्ट नंबर हो। 2018 में मैंने पीसीबी से रिक्वेस्ट भी की थी कि मुझे ये नंबर चाहिए,
लेकिन उस टाइम लाला ने रिटायरमेंट नहीं ली थी। उसके बाद जब अभी वर्ल्ड कप के लिए चल रहा था तो पीसीबी ने मुझे अलाउ किया था, बट शाहिद भाई ने उसको कहा था कि शाहीन अभी ये पहन सकता है, तो थैंक यू लाला का भी कि ये नंबर दिया। और बिल्कुल ये नंबर एक ऐसा नंबर है जब भी ग्राउंड में होता हूँ तो प्राउड फील होता है, क्योंकि पहले लाला पहनते थे ये नंबर, अब मैं भी यही चाहता हूँ कि ये प्राउड से खेलूँ इन नंबर के साथ और पाकिस्तान के लिए कम से। शर्ट नंबर वैसे तो जब डोमेस्टिक खेलते थे तो मुख्तलिफ नंबर मिलते थे, फिर जब पाकिस्तान ए में आया तो तब हमसे पूछा गया कि आपको कौन सा नंबर चाहिए। तब मैंने, क्योंकि उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया तो उसमें 39 नंबर था अवेलेबल, तो मैंने 39 का इसलिए बोला क्योंकि मैं जब नेवी में गया था पहली दफ़ा और वहाँ पे जो हमारा रूम था वो 39 नंबर था, तो वैसे ही मेरे ख्याल में आया कि यार चले। There you have it, the shirts and the numbers and the stories behind them. और अगर आप लोग यही जो ऑफिशियल जर्सी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहनना चाहते हैं तो यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम द pcb.com.pk, उनकी जो शॉप है उसके ऊपर से दिस मर्चेंडाइज, बाय द ऑथेंटिक मर्चेंडाइज, बाय द रियल डील एंड यू कैन बाय इट ऑफ देयर। Wear your passion hashtag इस्तेमाल कीजिए and share your passion with all of us like we are today. With that, let's get back to the business of the ICC Men's T20 World Cup. And हम बात कर रहे थे, मैंने वकारा भी सवाल पूछा था श्रीलंका का कि आप बड़े अच्छे लग इतना रहे थे, कुछ छेड़ दिया आपने कि हम छेड़ छूड़ के पता नहीं कहाँ से होके वापस आ गए। अच्छी बात नहीं, अब जरा श्रीलंका पे बात कर लेते हैं। People like hearing this ना कि आप शर्ट पहनी हुई है तो People would like to story also behind. Okay, चले छोड़े श्रीलंका। लोग श्रीलंका मिस आउट कर गई पिछला मैच। आई थॉट यू नो दे कुड हैव वन दैट गेम, क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत आ गया था, उनको थोड़ा सा शायद सोचना चाहिए था। उनको पहली इनिंग में भी एहसास हो गया था, राइट एट द एंड उनके भी टावल्स जब निकल आए थे, दैट मीन्स के ड्यू आनी है, ड्यू ने कम तो नहीं होना, ड्यू ने तो बढ़ना ही था। तो अगर वो थोड़ा सा संभल के अगर अर्ली ऑन खेलते तो पीछे तो 15-15 रन भी आपने बटलर ने को भी देखा, आपने इनके भी कुछ बैट्समैन ऐसे जिन्होंने खेला कि रन्स बड़े आसान आ रहे, हिट थ्रू द लाइन वाला चक्कर हो गया था। सो आई फेल्ट कि उन्होंने ट्रिक मिस कर दिया, कुछ रन आउट्स, कुछ थोड़ा सा बेदिली से खेले। And they're probably, you know, sitting back in the dressing room after the game, and they're probably, you know, headbutting each other because that was I think they missed out. अपने हेडबटिंग की जगह उनको कोच उनको डेफिनेटली हेडबट कर रहा होगा। आई थिंक फिर वही बात जो हम कल से कर रहे हैं कि द बिगेस्ट डिफरेंस इन बिटवीन टू टीम्स एक्सपीरियंस, काम कैसे रहना है, कैसे हमने उस सिचुएशन को हैंडल करना है। दे हैड देम 10 ओवर में 47 for 3 एंड सडनली एक ओवर में उन्होंने चांस लिया है मॉर्गन ने, और उसके बाद वो बिल्कुल अपनी बेसिक से हट गए। शारजा की पिच के हिसाब से जो आप लेंथ हिट करते हैं, फास्ट बॉलर्स दे वेंट टू अर्ली फॉर देयर डेथ बॉलिंग, स्लोअर वंस पे चले गए। फुलर बॉल वहाब भी यही बात कर रहा है कि वो स्ट्रेंथ है बटलर की और वो नहीं छोड़ेगा वहाँ पे। सो वही इन एक्सपीरियंस के थोड़ा सा प्रेशर पड़ा है, आपने पहले बॉलिंग में उसको बिल्कुल छोड़ दिया, फिर आप जब बैटिंग पे आए अगेन डिफरेंस देखें। जो इन हुआ बटलर 101, उसने रोका भी, देखा और सेलेक्ट किए बॉलर, अपनी इंतज़ार किया उस मौके का कि कब मुझे ऐसा बॉलर मिलेगा, मेरे एरिया में आएगा, मैं स्कोर करूंगा। जबकि दूसरी तरफ देखें इवन राजापक्षा बहुत अच्छा खेल रहा था, उसने बड़े अच्छे शॉट मारे उस ओवर में, बट वही 20, 22, 25, 26 कुड नॉट मेक इट ए बिग इनिंग। 60 रन की एक इनिंग कोई भी खेलता, सारों को स्टार्ट मिला है तकरीबन, लेकिन वही इन एक्सपीरियंस कि पता नहीं कि कैसे इनिंग को लेके जाना है यहाँ पे, और वही मेरे ख्याल में एक बड़ा डिफरेंस हुआ। अपार्ट फ्रॉम द गेम दे काइंड ऑफ आउट ऑफ वर्ल्ड कप तकरीबन, बट आई थिंक एक अच्छी चीज है श्रीलंकन इस टीम की, इट्स यू नो रे ऑफ होप कि उनकी क्रिकेट में कि ये टीम अच्छी लग रही है। और सारे यंग लड़के हैं, 24, 22, 23, आई थिंक शमीरा इज 29, otherwise they're all under 25. So they have enough talent in their बैटिंग में भी और बॉलिंग में। बहुत ज़बरदस्त टीम। अगर आप देखें निशांका परेरा नहीं चल रहा, लेकिन असलांका, अविष्का, फर्नांडो बड़ा ज़बरदस्त ने परफॉर्मेंस की हुई है। राजापक्षा जो है ये बड़ा ज़बरदस्त उनका प्लेयर है। बैटिंग में अगर देखें ना जो वो स्ट्रगल कर रही है, ऐसे प्लेयर हैं कि जो आगे चल के एक्सपीरियंस की सिर्फ कमी है। ये जितना खेलते जाएंगे इनको समझ आ जाएगी कि प्रेशर को कैसे लेके चलना है, कैसे हमने मैच को लेके जाना है, और बॉलिंग इनके पास पूरी है।
नया जो इनका स्पिनर है ठीक से ना, वो जिस तरह बॉलिंग कर रहा है, कल तो उसने शारजा में, हालांकि इतना इफेक्टिव नहीं होते स्पिनर्स, बट उसने जिस तरह बॉलिंग की है बटलर को बिल्कुल उसने हिलने नहीं दिया। कहीं ना कहीं कप्तानी भी थोड़ी सी एक्सपोज हुई है। अगर सपोजिंगली अगर 47 पे आपने 10 ओवरों में सिर्फ 47 दिया, आपकी जितनी भी बड़ी लाइनअप हो, बैटिंग लाइनअप हो दूसरी टीम की, यू डोंट अलाउ देम कि जी आप 163 कर जाएं, यू नो। बिल्कुल, मेरे ख्याल में मैक्सिमम जो हम बात कर रहे थे उस टाइम पे कि बहुत अच्छा भी खेल के शारजा के पिच पे 90 या 100 कर जाते, चले 150 तक चले जाते, बट दे अलाउ देम टू स्कोर 164, वो जो कि मेरे ख्याल में 116 रन आखिरी 10 ओवरों में शारजा में है, बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है। एक और वहां क्लियरली देयर वाज अ डिफरेंस इन फील्डिंग। इंग्लैंड से भी एक कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन फील्डिंग में भी बहुत ज्यादा फर्क नजर आया, बिकॉज बहुत सारी मिसफील्ड थी श्रीलंका की जो नजर आ रही थी। पिछली गेम में भी हो रहा था, इस गेम में भी हो रहा था। देखिए, फील्डिंग हमने पहले भी डिस्कस किया था कि द मोस्ट क्रूशल डिपार्टमेंट, क्योंकि फील्डिंग से आप 5-10 रन का डिफरेंस डाल देते हैं, स्कोर कम हो तो तब तो आप उससे अपनी फील्डिंग से 10-15 रन की फील्डिंग अगर आप बेहतर करें तो वो ऐड हो जाता है, और अगर आप फील्डिंग खराब करते हैं तो जो 5-10 रन दूसरी टीम ने करने होते हैं वो आप इजीली उनको दे देते हैं। सो फील्डिंग इज वेरी क्रूशियल। हमने ये फील्डिंग से ओवरऑल वहां गेम भी तो इफेक्ट होती है, बिल्कुल इफेक्ट होती है, बॉलर्स इफेक्ट होते हैं, आपकी सारी जो भी आपकी प्लानिंग है उसको इफेक्ट होता है, बिकॉज आप एक कैच ड्रॉप कर दें और वो प्लेयर फिर स्कोर कर दे तो फिर ना दैट्स आई थिंक मुश्किल हो जाता है दूसरी आई डोंट हैव ड्रॉपिंग कैचेस, तो जान के कोई नहीं करता ना, वो तो ड्रॉप हो सकता है, एज यू नो, इवन अ लिटिल सीधा कैच भी हो सकता है। इट्स द ग्राउंड फील्डिंग। वसीम भाई एग्जैक्टली देखें, वो डिपेंड करता है, वो फील्डिंग जब आप अच्छी कर रहे होते हैं ना तो वो बॉलर्स को भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। आप उनकी बॉल पे एक बॉल बुरा है, उस पर आपने डाइव मार के गेंद रोक लिया, चौका रोक लिया है, ग्राउंड फील्डिंग आपकी बेहतर है तो यू नो एज अ टीम भी उठ जाती है और बॉलिंग अब मैं देखता हूँ इस पाकिस्तान टीम में, यंग टीम है हमारी लेड बाय बाबर आजम, यू सी आई यूज्ड टू नोटिस फील्डिंग पूरी मूड का, टीम का मूड सेट करती है, स्पेशली व्हेन यू गो इन टू फील्ड। अब पहला बॉल फॉर इंस्टेंस फाइन लेग पे खड़ा हूं मैं या वकार या मिसबा या यू हूएवर इट मे बी, फाइन लेग पे गया है, वहां से पहला बॉल ऑफ द गेम। अब वहां पे जो भी फील्डर खड़ा है, इधर वो बॉलर है, बैट्समैन है, हूएवर ही मे बी, थ्रो शुड आए, पता लगे कि भाई ये अवेक। आजकल मैं देखता हूं, मैंने अब डोमेस्टिक T20 में भी देखा अपने में, वो पहली थ्रो करेंगे ऐसे करके, यू नो दैट ये एचिड हंस रहे, तेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं। बिल्कुल, ये इतना इम्पोर्टेंट है, 4.8 मिलियन व्यूज ऑन दैट, 4.8 मिलियन व्यूज ऑन दैट थ्रो। ये इतना इम्पोर्टेंट है, यकीन करें कि हमेशा कोचेस एक ही बात करते हैं कि अपनी रिप्यूट आपने खुद बनानी है। मैं अगर सर्कल में फील्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे बैट्समैन को मैसेज देना है, चाहे वो रन ले रहा है या नहीं, जो भी बॉल मेरी तरफ आनी है मैंने क्विकली मूव करना है, पिक करना और थ्रो करके थ्रो करना, ताकि की तरह, पैंथर की तरह, ताकि उस बैट्समैन का, जैसे वसीम भाई का भी मुझे याद है कि बाउंड्री से जो मर्जी है बैट्समैन स्कोर ले रहा है या नहीं, इट्स फॉर मी, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और बैट्समैन के जहन में ये चीज आ रही है कि भाई बहुत तगड़ा है इसका थ्रो है इस बंदे का, तो मैंने इससे रन लेते हुए वो सोचेंगे। मुझे याद है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक 2 रन आउट मैंने कर दिए, तो उसके बाद एपी डिविलियर जैसा बंदा, इतने बड़े बड़े सिंगल संगकारा और जयवर्धन ने खेल रहे हैं, मैं मिड विकेट पे खड़ा हूँ, तो इवन स्केल एक अंपायर के पास 2 बॉल गया तो वो एक डर सा थोड़ा सा बन जाता। हालांकि मेरे से तो बहुत अच्छे फील्डर थे बाकी सारे, वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि अगले को मैसेज देना आपने, बिल्कुल, कि भाई यहाँ से जो है ना थ्रो आएगी, तेज आएगी, तो थोड़ा सा अपने उस रिप्यूट के लिए आपने अच्छी फील्डिंग करी। जरूरी नहीं कि बैट्समैन दौड़ रहा है, नहीं दौड़ रहा है। एंड थ्रो इज आल्सो अ हैबिट, जितनी आप करोगे। अब कई जो थ्योरी, यू नो द 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स, वो जावेद भाई कहते थे हमारे दौर में कि मैं प्रैक्टिस में थ्रो कम करता हूँ, मेरा बाजू स्ट्रांग रहे, उनका ऐसा बॉडी थी, मगर मेरा या वकार या इंजमाम, ये हमारे दौर में सारे थे, हम इजाज, हम प्रैक्टिस में पूरी थ्रो करते थे, जितनी मर्जी से 1 घंटा प्रैक्टिस की है, ताकि बिकॉज अगर आपने प्रैक्टिस में थ्रो नहीं की जोर से, तो मैच में जब जोर लगाओगे तो वो आपकी थ्रो बिल्कुल आपके निशाने पे नहीं गिरेगी, अंडर प्रेशर आपकी थ्रो इधर जाएगी या इधर जाएगी या वो यॉर्कर टाइप होगी। सो ये बड़ा जरूरी है कि प्रैक्टिस में आप पूरी वो थ्रोएं करो ताकि प्रेशर में कर सको। वसीम, लेट मी आस्क यू, आपने बड़ी अच्छी बात की, यॉर्कर टाइप थ्रो होगी, ये जरा एक्सप्लेन करते हैं। मैं समझ गया हूँ कि कीपर के लिए वो यॉर्कर बनेगी फॉर द व्यूज। थ्रो 2 तरह की होती है, 2-3 तरह की होती है। एक थ्रो होती है जो आप
सीधी करते हो जो स्टंप्स के ऊपर आती है, ठीक है, उसके लिए बड़ा स्ट्रांग आर्म चाहिए। और दूसरी थ्रो होती है जिससे स्पेशली अगर ओस पड़ी है या थोड़ी सी आउटफील्ड लिटिल वेट है, वन बाउंस, उससे तेज आता है बॉल, वन बाउंस। सो यॉर्कर ये होता है कि आपने वो थ्रो की अंधाधुंध की, वो अगर बॉलर है, अगर ग्लव्स वाला तो वो तो पकड़ लेगा, यहाँ ठप्पा लगा तो ऐसे पकड़ लेगा। मोइन बहुत जबरदस्त है ऐसे पकड़ने में। अगर आपने बॉलर को पूरी तेज थ्रो की और यहाँ गिरी, बॉलर तो नहीं पकड़ सकता, वो यहाँ से जाएगा या ऐसे जाएगा। तो ये बड़ा जरूरी है कि आपको अपना डिस्टेंस, और वो प्रैक्टिस से आ सकती है। वसीम भाई, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है, जैसे आजकल के क्रिकेट में इवन वनडे में भी 2 वाइड बॉल लगते हैं, बड़ा ज़रूरी है। नॉर्मली फ्लैट पिचेस होते हैं, स्केयर बड़ा होता है, तो कोशिश करते हैं आप वन बाउंस थ्रो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी टाइम यू हिट दैट स्केयर, बेसिकली वो बॉल जो है वो आप उसको सॉफ्ट कर रहे हैं, और जितनी जल्दी वो सॉफ्ट होगा तो रिवर्स स्विंग आएगा, और दूसरा हार्ड जितना रहेगा बॉल वो उतना ज्यादा दूर जाएगा, हिटे लगेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप रन आउट करते हुए आपने पूरी थ्रो कैसे करनी है अगर रन आउट का चांस है, एंड देन इफ यू आर फील्डिंग ऑन लॉन्ग ऑफ, कीपर की तरफ थ्रो करना है तो कोशिश करते हैं सारी टीमें करती हैं कि वन बाउंस जाए, स्केयर पे लगे बॉल। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड को आपने जहन में रखना है। जैसे शारजा की ग्राउंड है, वहां पे वन बाउंस करेंगे तो वो कीपर तक पहुंचेगी भी नहीं, बॉल वहीं फंस जाएगा। कुछ ग्राउंड हैं जो सॉफ्ट नहीं है, जो बड़े जहाँ पे बॉल लग के तेज जाता है, तो वहां पे जब भी रन आउट का चांस होगा, 2 ले रहा है अगर बैट्समैन, तो यू ऑलवेज ट्राई कि यार मैं हिट करूं उसको, लेकिन हिट इतना पीछे नहीं करना, आप इतने उस पर करते कि वो लग के बॉल जो है वो तेज हिट करके सीधा कीपर के हाथ, जब नॉन स्ट्राइकर एंड पे बॉलर के हाथ में जाओ, रन आउट का चांस। एक चीज देखिए फखर के इस वर्ल्ड कप में हमारे लड़के जो है ना, दे पुटिंग एवरीथिंग इन फील्ड में भी, दे लुक रियली गुड, कैचेस हैव बीन टेकन बिकॉज़ देयर इज नो वीक लिंक। एक वीक लिंक हो टीम में, एम आई राइट? चीते हैं सारे चीते हैं। हाँ, एक वीक लिंक हो। They all, I mean, honestly speaking, मैं नाम लिख रहा था, honestly नाम लिख रहा था। नहीं, एक वीक लिंक हो आपका, वो 2 दुक्के दे दे तो सारा प्रेशर बॉलर पे भी आ जाता है, बॉलर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कप्तान पे भी आ जाता है। I was writing this. Can I just read the names? I'm trying to read the names. The guys were really good fielders. I mean, Malik is good, Hassan is good, Fakhar has done really well. Shadab, Shaheen, Haris, Babar, Nawaz, Wasim. I mean, तो 2 छोड़ गए हैं, 2 लड़के। नहीं, मैंने नहीं छोड़ा अभी तो मैं लिख रहा था, अभी तो मैं थोड़े बहुत ज्यादा हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि दीस गाइज आर रियली गुड, एंड आई थिंक इस वर्ल्ड कप के बाद आप देखेंगे कि जब हम नेक्स्ट वर्ल्ड कप में जाएंगे या उससे आगे जब मूव करेंगे, तो एक क्या कहते हैं जिसे रूह फूकी जाएगी कि फील्डिंग के बगैर नहीं होता गुजारा, फील्डिंग आपको अच्छी करनी है, और जो फील्डिंग अच्छा नहीं करता डोंट सेलेक्ट हिम। बट विकी, वही मिसबा की बात जो शुरू से कहता आ रहा है कि फील्डिंग आपकी इंप्रूव होगी फिटनेस से। आप फिट होंगे, फॉर इंस्टेंस किसी का वेट पुट ऑन है, आई मीन लाइक यू सेड कपल ऑफ प्लेयर्स, पहले इंग्लैंड जिस टूर पे थे आप, पीएसएल से पहले किस टूर पे थे? जो पीएसएल अभी इंग्लैंड से वापस आया, उनका वजन 105 किलो था, वो पीएसएल वापस खेल के आया, उनका वजन 120 किलो हो गया। इमेजिन मैं किसी को, फॉर इंस्टेंस वहाब को 25 किलो की प्लेट वो जो होती है, वो तुझे कहूँ ये पीछे बांध और पूरा दिन भाग इसके साथ। सो दिस हाउ मच वेट यू पुटिंग स्ट्रेस, इतना एक्स्ट्रा वेट। देखिए वसीम भाई, ये एक साइड है इसकी। दूसरी साइड जो सबसे बड़ी है कि कल्चर टीम का बाकी लोगों को आप बिल्कुल जो है ना वो डिमोरलाइज कर देते हैं, उन पे बहुत ज्यादा असर होता है। जब एक बंदा, जब फिट होते हैं सारे एक दूसरे को देख के, तो एनर्जी ऑटोमेटिकली टीम में आती है। एक बंदा ऐसा आता है ना तो सारे पता है वो ऐसे, ये है तो हमें ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, तो देन इट बिकम्स वेरी जिसको कहते हैं डिफिकल्ट फॉर द होल टीम, और उसके लिए बड़ा मसला हो जाता है। वो आपका कल्चर ऐसा होना चाहिए। इंग्लैंड की टीम क्यों करती है, न्यूजीलैंड क्यों करती है, दुनिया की टॉप टीम्स क्यों करते हैं? भाई एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से ज्यादा फिट हैं। अब कल जो पहला रन आउट किया निसाका का, आधा मैच तो वहीं ले गए, वो रन ऐसे था, और इनफॉर्म बैट्समैन, इनफॉर्म था, स्प्लिट सेकंड था, कोई टाइम नहीं दिया। मॉर्गन ने जिस तरह से ऐसे ऑन द टोज था, हालांकि T20 में नॉर्मल टीम्स खड़ी होती हैं को ठीक है सर्कल से सिंगल हो जाए कोई मसला नहीं। जो बल्टन ने रन आउट किया,
अगर वो शना का अगर वहां पे रन आउट ना हो तो मैच तो बड़ा क्लोज था। तो मतलब है कि और इतनी यूजुअली इम्पोर्टेंट जब चीजें स्पिनर बॉलिंग कर रहा हो पहले 6 ओवरों में भी, पहले ओवर में भी, वो सारे फील्डर लाइन से आते हैं, सर्कल से आते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं बटलर का रन आउट देखें जो उन्होंने थ्रो की थी कल, इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। लुक हार्डली एनी, लुक एट दैट। और ये तीसरा बॉल था, ये देखें। मॉर्गन से रिलीज किया और द वे उसने देखे कीपर ने, नॉर्मली क्या करते हैं कीपर पीछे खड़े होकर बॉल, अब बॉल को ट्रेवल करना है स्टंप्स के पास से आपके ग्लव्स तक एंड देन यू हैव टू टेक इट टू द स्टंप्स। तो वो टाइम स्प्लिट सेकंड वो भी वेस्ट हो गया, ये भी मॉडर्न डे है। उसने आगे से ही बॉल को पकड़ा और यूं कर दिया। अगर वो टाइम आने का और फिर हाथ के जाने का बचा लिया। आपने देखा बड़ी दफा अगर हम धोनी के कुछ देखें रन आउट्स तो वो थ्रो आती हुई को हल्का सा डिफ्लेक्ट कर देता था। अभी रिजवान ने वहां पे टेस्ट सीरीज में आउट किया था, पार्टनरशिप लगी हुई थी ओपनर को, उसने ऐसे बॉल, यानी गेम अवेयरनेस है, आप कितने ज्यादा अलर्ट हैं उस टाइम पे। आप उसने बस यूं किया, हल्का सा ग्लव्स को लगा, डायरेक्शन चेंज हुई सीधी स्टांस में, वो बिल्कुल लाइन के ऐसे ऊपर था बैट, उसने रोल नहीं किया। वसीम, you played in the era of one of the greatest fielders that we've known in the point cover area, Jonty Rhodes. Yeah, I did. And you've seen him in action live. Yep. And there was a big difference between him and the rest of the South African. Yeah, नहीं, बट जॉन्टी से पूछा हमने कि वो उसकी ड्रिल्स क्या होती हैं, सो ही एक्सप्लेन कि ये जो फील्डिंग वो कर रहा है, ही इज फॉर हिम दैट्स मोर फन फॉर हिम, फील्डिंग इज फन, ऐसे इंप्रूव हो गया। समझो कि वो फील्डिंग करनी है तो देन इट वोंट वर्क। State of mind. सो ही यूज्ड टू थ्रो, उसने आई थिंक जो हमने मैचेस काफी खेले उनके खिलाफ, वो पॉइंट से जब भी मारता था बॉलर के उस पे 90% वो लगती थी स्टंप को, वन स्टंप को एम करके। तो वो कहता था कि मैं 100 गेंदे या 50 गेंदे, अब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कितनी गेंदे, मैं स्टंप को मारता हूँ रोज। वो फिर जॉन्टी था इधर पॉइंट पे, वो आ गया, गिब्स आ गया एक्स्ट्रा कवर, बंदा सिंगल लवे के देखो यस नो ही करते रहते थे हम। एक तो वसीम भाई इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी पोजीशन है कि आपने रेडी, आपने मेंटली ये तैयार रहना है फील्डिंग में कि यू आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी एज अ कि फील्डर। बॉल आपके पास आएगा। हाँ जी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अल्लाह करे मेरे को ना आए, फिर तो आप इट हैपेंस। वंस यू आर अंडर प्रेशर, अच्छे फील्डर भी, हमारे साथ भी हुआ है, अच्छे फील्डर जब मतलब रीजनेबल फील्डर था, लेकिन मुझे भी अब कई दफा आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, एक आधा बॉल चला जाता है, यू स्टार्ट फीलिंग कि यार ना ही आए मेरे पास दो, एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग एज अ फील्डर ऑन अ क्रिकेट फील्ड। 2 कैच छूट जाएं बट कीप थिंकिंग यार मैं मेरे पास ही आए। और जब मैं भट्ट की बात करूंगा, इमरान भट्ट से कैच एक निकल गया तो वो बाहर आया तो उसको मतलब किसी ने कोई, लेकिन वो अंदर जाते हुए दूसरे फील्डिंग कोच के कहता है अब मैं जो है ना, ये नहीं कि मैं वो फीलिंग डाउन हूं में खाली हाथ वापस नहीं आना, और उसने जाके ऐसे आला कैच पकड़े। तो इस किस्म का कॉन्फिडेंस हो के गिर गया है तो आप और ज्यादा चैलेंज लेंगे भाई। और दूसरी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वेयर एवर यू आर फील्डिंग योर पोजीशन। हमारे फील्डर आजकल, हम स्टार्ट कई दफा कहते हैं कि स्टार्ट में रहना, तो हम भागना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स द बॉल, और आप जैसे मर्जी भाग रहे हैं भाई, जब बल्ले में बॉल लगता है तो उस वक्त लाइक अ स्प्रिंटर आपने एक दफा स्टेबल होना, वो पावर पोजीशन बनानी है क्रिकेट में, तो उसके बगैर जो है, उसके बगैर बॉल बॉल की जरूरत नहीं है, बॉल की जरूरत नहीं है। मैं वैसे ही उसको एक्सप्लेन करता हूँ नॉर्मली व्हाट आई यूज्ड टू डू, और जो मैंने, इवन जॉन्टी भी आया था, इवन जूलियन फाउंटेन था, सारे अच्छे फील्ड जितने भी फील्डिंग कोच हो, ये कहते हैं कि फाइनल पोजीशन, मैं आ रहा हूं, मुझे पता होना चाहिए मैंने कहाँ फिनिश करना है सर्कल में, जो मेरा फाइनल पोजीशन है वो कहाँ है। इसी तरह बाउंड्री पे अगर मैं फाइन लेग से आ रहा हूँ या लॉन्ग ऑफ से आ रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि मैंने अगर चल के आना भी है तो मैंने कहाँ फिनिश करना है। बट मैं आ रहा हूँ नॉर्मल, जो मेरी फाइनल पोजीशन है जब बॉल बल्ले में लगेगी वो यही होगी पावर पोजीशन। यस, लाइक अ फुटबॉल गोलकीपर, पीछे हील पे वेट नहीं होगा, वेट दोनों तरफ, वेट मेरा थोड़ा सा आगे की तरफ होगा, होगा, हल्के से नी फ्लेक्स जैसे बैटिंग में आप करते हैं, ताकि बिल्कुल बॉडी रिलैक्स है। ये अब मैं किसी भी तरफ मूव, अगर मैं यूं आ रहा हूं देन आई हैव टू मूव राइट और लेफ्ट, आगे ही तो बॉल नहीं आएगी। बैट्समैन ने, मैं यूं जा रहा हूं और राइट चला गया बॉल, अब मैं राइट मूव यहां से नहीं कर सकता, मुझे यहां यूं करके फिर ही राइट
यानी मैं इस पोजीशन से यूं करके फिर ही इधर या इधर निकलूंगा। तो मुझे वो टाइमिंग सेट करनी है, जब बल्ले में बॉल लगना है, स्लिप हो, बाउंड्री हो, सर्कल हो, जिस पोजीशन में मैंने पहुंचना है वहां पे जाके ये पोजीशन है। नहीं, आजकल थ्रोज भी तो मिसबा 2-3 तरह के, आजकल तो मैं थ्रो देखता नहीं। जैसे प्राइम एग्जांपल है जो मॉर्गन ने थ्रो की थी, अब देखिए वसीम भाई, पकड़ा बॉल और नीचे से फेंक दिया। सर्कल में डजंट मैटर, सर्कल में आपकी प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। यू शुड प्रैक्टिस कि मैं क्विक रिलीज कैसे कर सकता हूँ और एक्यूरेट कैसे कर सकता हूँ रन आउट के लिए। ऑब्वियसली फ्रॉम अ लॉन्गर डिस्टेंस आपको प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, आपका बिल्कुल ये टुवर्ड्स योर टारगेट होना चाहिए, पूरा जाके बॉलिंग की तरह आप मारते हैं। सर्कल में डजंट मैटर, अगर छोटा फासला है यू कम एंड यू जस्ट फ्लिक। नहीं, एक आप भी ये है, नीचे से पकड़ते हैं ताकि आप पूरा लेके नहीं जा सकते ना, जैसे उसने कल बॉल पकड़ा और यहीं से रिलीज किया और आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। रिकी पॉन्टिंग ऐसे करता था, बहुत जो सर्कल के फील्डर हैं उन डिफरेंट तरीके से, लेस टाइम एक्यूरेसी, वो प्रैक्टिस की जरूरत है। इनमें ये भी बताएं कि जब आप लोग सर्कल में फील्डिंग करते हैं, वाई जो सर्कल में फील्डर हैं वो अच्छे होने क्यों जरूरी हैं, वो सर्कल में क्यों फील्डिंग करते हैं? क्योंकि उनकी एंटिसिपेशन जो बैट देख के वो क्या किस तरीके से आप बैट से रीड करते हैं? एंटिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कई फील्डर जितने मर्जी तेज हों, अगर आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे एज अ बैट्समैन, आप एज अ फील्डर आपको नहीं पता कि बॉलर कौन सा है। जी जरूर, जस्ट इन केस बैट मुझे नहीं चाहिए, नहीं, अगर जस्ट इन केस अगर मैं खेल रहा हूँ बैट्समैन को और मुझे पता होना चाहिए कि ये बैट्समैन क्या, जैसे फर्ज करें गेल खेल रहा है, हाँ, फिर मैं सर्कल में खड़ा हूँ, आई कैन जस्ट सिट बैक, मुझे पता है यार ये रख के मुश्किल ही दौड़ेगा, लेकिन मैंने पीछे भी अगर रहना है तो मैंने ये जरूर करना कि मैंने क्विकली मूव करना है। मैं अगर सर्कल पे भी खड़ा हूँ तो ये नहीं कि मैं खुला सिंगल दे दूं, मुझे पता है कि आई हैव अ चांस, राइट, मैं वहां से भी अगर तेज जाऊंगा तो मैं इसके सिंगल रोक लूंगा, बट मुझे करीब आने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रख के सिंगल बहुत कम लेगा, उसने जोर से ही मारनी है, तो वो मुझे चांस मिल जाएगा कि ऊंची शॉट कोई आएगी, अगर मैं सर्कल पे खड़ा हूँ तो मेरे पास चांस है कैच पकड़ने से। अगर बाबर बैटिंग कर रहा है वो तो रख के सिंगल लेता है, उसके लिए डिफरेंट रिजवान और बाबर हैं, यू हैव टू कम क्लोज, आप कट डाउन करेंगे, ज्यादा रोलिंग शॉटें मारते हैं, जितने करीब आएंगे एंगल कट होगा, उनको गैप्स कम मिलेंगे, बट एट द सेम टाइम आपके रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे होने चाहिए कि वो तेज लगे और आप उसको कवर कर सकें उस एरिया में। थैंक यू, अप्रिशिएट इट। वेल विद दैट, ये जरा मॉर्गन वाली थ्रो एक दफा फिर देख लेते हैं, जो मिसबा ने बड़ी अच्छी जो फ्लिक किया आपने वसीम पॉइंट आउट किया था, ये थ्रो जरा दोबारा देखें। This is going to be, look at the way the fielder collects and releases. मिसबा बात कर रहा था, look at the collection and release. Oh my! Now that I'm looking at it, after that demo, look at that release. बिल्कुल, अगर वो ऊपर से लाता तो जो मिसबा एक्सप्लेन कर रहा है वो ऐसे करके पकड़ के ऐसे करता तो बैट्समैन क्रीज पे पहुंच चुका होता। इतना ही टाइम बचाना था ना, वो इतना बाहर था, तकरीबन 6 इंच 8 इंच। ये बड़ा जरूरी है, मुझे अपने भी रन आउट के याद है, मैं यूनुस खान के याद है, रिकी पॉन्टिंग के याद है, आपको ये करना पड़ता है, आप उसको नॉर्मल पोजीशन में नहीं जा सकते सर्कल में, लेकिन इसकी प्रैक्टिस है। मतलब कोशिश ये होती थी, मेरा मिड विकेट पे मैं ज्यादा फील्डिंग करता था या एक्स्ट्रा कवर में करता था, तो एवरी डे आई यूज्ड टू थ्रो 20 बॉल्स एक्स्ट्रा कवर से, 20 बॉल्स मिड विकेट से, 2 विकेटें लगा के किसी को भी कह के मैं वो मेरी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस थी, वहां से पिक करके यही थ्रो, यही वाला फ्लिक। आई रिमेंबर कहाँ पे था मैच वो, आई थिंक इट वाज हैमिल्टन मैच था शायद, हैमिल्टन पहली बॉल पे, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, पहली बॉल पे जेसी राइडर नॉन स्ट्राइकर एंड पे था और दूसरे किसी बैट्समैन ने ऐसे खेला है और हम कह रहे थे मिसबा बहुत ऊपर चढ़े है यार, थोड़ा सिट बैक करे, स्ट्राइकर मिसबा आया एंड ही पिक्ड इट अप एंड आई डोंट नो व्हाट ही वाज थिंकिंग, इसने वहीं से फ्लिक किया ऐसे बॉल ऐसे करके और नॉन स्ट्राइकर पे बाहर खड़ा था। हैमिल्टन में टेस्ट मैच में टेलर को आउट किया था इसी तरह, उसने कवर में मारी, ही वाज थिंकिंग कि मैं पकड़ के टॉप, मैं सर्कल पे था कि ये पकड़ के ऊपर से थ्रो करेगा, मैं पकड़ के यहीं से ऐसे थ्रो किया और डायरेक्ट हिट हो गया और रन आउट हो गया। सो इट हेल्प्स यू। रिकी पॉन्टिंग को देखा था मैंने सबसे पहले, ऐसा रन आउट किया, मैं थ्रो ही यहाँ से नीचे से करता हूँ मोस्टली। वो तो वी नो, हाँ जी, काफी रन आउट। शुरू में तेरे शोल्डर ठीक था वसीम भाई, बेसिकली
थ्रो करते हुए ना मेरा एंगल का कोई इशू हुआ था, जिसकी वजह से जो मेरा शोल्डर था ना उसमें फिर काफ़ी पेन हो गई। फिर वो रिहैब वगैरह किया तो वो उस तरह जो स्ट्रेंथ थी थ्रो में वो नहीं रही। सो अब मैं जिस एक्शन से जो आपने मेरा करके दिखाया था लोगों को, कितने व्यूज थे? 4.6 मिलियन व्यूज हैं। एक दफा और करके दिखा। प्लीज एक बारी वो इसलिए करता हूँ कि मैं वो इसलिए करता हूँ कि मैं यहाँ से पावर ज्यादा जनरेट करता हूँ, और जब मैं बाउंड्री पे ज्यादा खड़ा होता हूँ तो फिर मुझे क्विक रिलीज इसलिए करना होता है, और यहाँ से नीचे से आप जब भी रिलीज करेंगे आप भी एक्स्ट्रा करते हैं तो क्विक। You're saying muscle strength यहाँ की गई है, दोबारा नहीं आई? नहीं, वो दैट इज नॉट दैट मच गुड। तो इस वजह से फिर मुझे जो है वो थोड़ा सा बॉडी से मैं थोड़ी सी पावर जनरेट। तो माय क्वेश्चन इज, डिड यू एक्चुअली जब स्ट्रेंथ चली गई, डिड ये क्या नेचुरली बॉडी ने इवॉल्व किया, या यू केप्ट ट्राइंग इट एंड के यार बेस्ट मेरा एंगल क्या बनता है थ्रो का? हुआ यह कि उसमें मेरी अपनी गलती थी। मैं जब हम जाते हैं फील्ड में तो हम अपने वार्म अप्स वगैरह करते हैं। सो मुझे वो इतना यकीन था कि यार मैं जब वार्म अप्स के बगैर आई यूज्ड टू थ्रो क्विक एंड फास्ट। वो क्या हुआ कि जब हम क्लब के मैचेस खेल रहे थे तो उस दौरान रन आउट करने गया हूँ, और मतलब मैच में था बस, उसमें मैंने जल्दी रिलीज करने गया हूँ तो कहीं पे मेरा जो बाजू है वो थोड़ा सा पीछे रहा या आगे हुआ, तो एंगल में मेरे एकदम पेन निकली है। उस पेन को फिर कंपनसेट करने के लिए कंपनसेट करते 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 हाथ यहाँ पे आ गया। अब ऊपर से भी कोशिश करता हूँ तो मेरे से उस तरीके से थ्रो नहीं परसों पहुंचती है। ऊपर से तो काफी देर बाद पहुंचती है। और ये एक बहुत अहम सबक है जो आपने वहाब की बात से सुना कि वार्म अप करना कितना जरूरी है, स्ट्रेच करना, वार्म अप करना बिफोर गोइंग टू से दैट्स अ लेसन लर्न, बिकॉज़ वो एक इंजरी है दैट ही हैज टू डील विद नाउ फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। लेकिन आजकल के मॉडर्न क्रिकेटर्स दे मोन अबाउट वार्मिंग अप, कि हमें क्यों कराया जाता है, हमसे ये ना कराओ, हमसे वो ना कराओ। आई थिंक दैट ऑल्सो मैसेज शुड बी वेरी क्लियर बाय वहाब कि जो वहाब के साथ हुआ है, सो काइंडली मेक श्योर कि डोंट डू दैट। देयर यू गो, लेसन टू बी लर्नड देयर। आप देख रहे हैं द पेविलियन, ये है ए स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। आवर कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप कंटिन्यूज राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू द पेविलियन, मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। विद मी इन द पेविलियन पाकिस्तानी लेजेंड सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाहुल हक एंड वहाब रियाज। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग फील्डिंग के हवाले से बात कर रहे थे। वी गॉट 2 बिग मैचेस कमिंग आउट योर वे टुडे। पहला मैच हम आपको, और दोनों मैचेस अबू धाबी से हैं। पहला मैच जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, दोबारा रिफ्रेश कर दूं, जो है वो है बांग्लादेश बा मुकाबला साउथ अफ्रीका, और फिर शाम का जो दूसरा मैच है आज वो है पाकिस्तान बा मुकाबला नामीबिया। जरा ये पाकिस्तान और नामीबिया के हवाले से बात कर लेते हैं, बट इससे पहले कि हम इस मैच के बारे में बात करें, आइए चल के देखते हैं एक प्रीव्यू। इट्स पाकिस्तान अगेंस्ट नामीबिया। The fans back home has been massive for us. We only have 2.5 million people in Namibia, but they've been all have been behind us, and even people from South Africa. Against Pakistan, we're playing against the best batsman and the best bowler in the world. They've got the most consistent batsman this year or the last 2 years, and some of the most consistent bowlers in the last 2 years. So for Namibia, that's a big step up, and like it's a massive challenge. Pakistan's pace. And just think the captain Baba Azam's calmness, like if we can like adopt a certain style from Pakistan, it's just how calm he is when he bats, and even the experience like Mohammad Hafiz and Shoaib Malik, that's massive for their team. Pakistan definitely looks like the team to beat. They certainly look like the team that's got all the departments under control, fielding, bowling, batting. So I reckon that's going to be probably our toughest game in this group. They also have lots of support here in the UAE, so hopefully a nice full house for the guys. And looking at those games for us, it's something that we've never experienced before, to play against the quality of those type of players. So for me, the biggest thing is if we can play 40 overs of cricket, not get bowled out for a 60 or 80, if we can compete and then take that experience that we'll gain out of those games, it will be in good stead for the team going forward. The games that we've played, obviously due is a factor. So winning the toss, most teams opt to chase. I think for us, it's also our strength. We're a team that can chase well. So, if we win the toss, we'll probably look to do that. I think as a team we are playing very good cricket because everyone is performing, everyone is in a good touch. As a bowling unit, everyone is performing. So in these type of competitions, so everyone is in good form. We have a simple formula. We just wanted to play a ruthless cricket. We want that ruthless start against Namibia also because there is a little bit, condition is a little bit different from Dubai. So might be good for our fast bowler as well because there is a swing. We play Abu Dhabi in PSL, a PSL play there, so that time is swinging a lot.
in the night's game is swinging, so swing and seam both. So definitely is a help of a fast bowler, and some pitches is spinning also. We see last game of Afghanistan and Namibia, there is a spin also. So any situation we wanted to compete. If any team is winning toss, they're winning. I don't think so. It's a due factor, but it's very difficult to score a run in a fast inning. I think so. And is very difficult in this tournament so far is like defending the total, because everyone who won the toss is going to bowl first. Maybe we change that tomorrow. There you go, the Pakistani flag fluttering there high, always making us proud. Shadab Khan saying there, we want to play ruthless cricket. I like that sentence. That shows the state of mind that our boys are in. And secondly, जो उन्होंने दूसरी बात की कि it is becoming very difficult to defend the total. So far, everybody wants to put up a target. It is a very special day here today. It is the 2nd of November. And why is it a special day? Well, it's a special day because Waqar Yunus's daughter just graduated 12th grade. Yes. It's, congratulations. Congratulations, Mariam. Well done. It's a special day because it's my son's 10th birthday today and I'm not home. So happy birthday, Ryan. Happy birthday. But it is very, very special day because on this day in 2014, our very own Misbah-ul Haq scored the fastest, equalized the fastest test century record in Abu Dhabi. Well done, Misbah. Well done, Misbah. Very proud. मतलब आपने एक T20 टाइप की इनिंग खेली थी, 100 मारे थे 56 गेंदों के ऊपर आपने, उस वक्त का जो टेस्ट रिकॉर्ड था उसको बराबर आपने किया था फॉर द फास्टेस्ट सेंचुरी. वो मिसबा ने बिफोर ही आंसर सिर्फ इसलिए किया जो लोग इसको टुक टुक कहते थे. हमने क्या होना अहमद आनिज. 2014 ना, ग्रेट मेमोरी मिसबा. आई थिंक सेकंड मैच था सीरीज का और इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट था कि उससे पहले मेरी फॉर्म बड़ी बहुत स्ट्रगल कर रहा था. प्रीवियस सीरीज़, फिर वनडे सीरीज़, फिर टेस्ट सीरीज़ में गए तो आखिरी मैच में वनडे में मैंने रेस्ट लिया मेंटली अपने आप को थोड़ा सा वापस लाने के लिए. प्रैक्टिस अलॉट. ऑस्ट्रेलिया का एक साइड मैच हो रहा था शारजा में, तो उस वक्त एक ये भी था कि मैं वो मैच खेल लूँ. पाकिस्तान यही खेल रही थी, बट मैंने प्रेफर किया कि आई शुड जस्ट टेक टाइम ऑफ, अपनी प्रैक्टिस करूँ. मुझे याद है वकार भाई जाते थे साथ और हम लोग पहले सुबह जाते थे, फर्स्ट सेशन के हिसाब से 1 घंटा प्रैक्टिस करते थे, दैन लंच में ब्रेक करते थे, फिर लंच के बाद उसको कंटिन्यू करते थे. लाइक कि टेस्ट मैच में जैसे बैटिंग मैंने सेशंस करने, उसी तरह मैंने 2-3 दिन प्रैक्टिस की, थोड़ा सा वापस हुआ. सो इट वाज स्पेशल इन टर्म्स ऑफ दैट. पहली इनिंग में मैं दुबई में एक इनिंग में बारी है, उसमें 60 समथिंग किया, एंड देन गॉट सम कॉन्फिडेंस बैक. पहली इनिंग में 100 गया यहाँ पे अबू धाबी में, तो सेकंड इनिंग वाज लाइक अ बोनस. तो जाना है, अजहर का 100 आने वाला है, जाके जितने रन हो जाएं ठीक है. जस्ट दूसरी जो चीज़ मुझे याद है कि स्मिथ से मैं 2 दफ़ा आउट हुआ था. अच्छा. और पहले मैच में मैं 60 कुछ पे आउट हुआ दुबई में, मिडॉन पे कैच हुआ. दूसरे मैच में मैंने कहा कि अब 100 जैसे ही मैंने किया, मैंने स्मिथ के बॉल 1-2 खेले आराम से, अब मैं वो जो है पिछले आउट बराबर करूँगा. एंड ही गॉट मी आउट अगेन. रोकते हुए वो डिप हुआ बॉल, कॉटन बोल्ड हो गया. मैं आउट होने के बाद मैं सोचता था यार एक चांस और मिल जाए ना तो मैं इसका एक गेंद भी नहीं रोकूंगा. एंड लकीली आई गॉट दैट चांस. स्मिथ वाज बॉलिंग और ऊपर से एक कैच भी छोड़ दिया उन्होंने एक छक्के के बाद. आई थिंक सिडल ने छोड़ा था. बस आएगा बस. अब जो है ना अभी ये अजहर का 100 करवाने गया था, ये याद रहे. किसी और का 100 अजहर अली का 100 करवाने गए थे. आई थिंक ग्रेट सर विवियन रिचर्ड का रिकॉर्ड बराबर किया था फास्टेस्ट 100. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ की थी, एंटीगा इफ आई रिमेंबर करेक्टली. And yes, and he did it against Australia, 56 right here on the Abu Dhabi pitch. अबू धाबी पिच की बात करते हैं दोस्तों. आइए आपको चल के दिखाते हैं अबू धाबी स्टेडियम से. बल्कि अभी उसके ऊपर पिच रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे हम, बाद में वो बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट द नामीबिया पाकिस्तान गेम. वी आर वेटिंग फॉर द पिच रिपोर्ट टू कम इन. सो पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया. यस. पहली दफा खेल रहे हैं T20 में. यस. Last time Pakistan played the series, you took 5 wickets. The last year of World Cup, it was World Cup. Yes, yeah. And you also have great memories in history. Of course, you've got so many of them. You, Waqar, and everybody. And tell us how it was to bowl against Namibia the time that you took those 5 wickets.
आई थिंक मैंने ऊपर से 5 के 5 आउट किए थे, नया गेंद स्विंग हो रहा था तो मोस्टली सारे आई थिंक लेग बिफोर हुए थे 4 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. आई थिंक दे वर लाइक दिस टीम में वीसे इज वेरी एक्सपीरियंस, जनरली इनएक्सपीरियंस साइड. तो आई थिंक पाकिस्तान टीम अगर शाहीन खेलेगा तो भी कोशिश करेगा कि नया गेंद आगे और अंदर लाए, फिर उनके पैडों पे लगता है बॉल आके. एंड आई थिंक इट्स आइडियल सिचुएशन opposition for Shaheen to get some wickets early on with the new ball. Yeah. वीजे की आपने बात की, वकार वीजे लाहौर कलंदर्स के लिए खेलते हैं और लाहौर कलंदर्स का बड़ा फेथ है वीजे के अंदर. यू नो दे बिलीव दैट ही डिलीवर्स द गुड्स टू देम. इनफैक्ट सो मच सो कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब ड्राफ्टिंग हो रही थी तो उन्होंने उनको डायमंड कैटेगरी में लॉक कर दिया था. दे डिडंट लेट हिम रेलेगेट इनटू, दे कुड हैव बॉट हिम, उनको मतलब खरीद सकते थे, कम पैसों में ड्राफ्ट कर सकते थे, लेकिन उनको लॉक कर दिया. They could have gotten another player in the category, but they went with that, and he delivered the goods to them. Too much dependency on if there's that faith in him, and Namibia also has a lot of faith in him. Couldn't do that last match. Yeah, sometimes ऐसा होता है कि when you are a kind of player who's a match winner, तो अगर आप थोड़े से अगर वीकर टीम के अंदर खेल रहे होते हैं ना तो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ड हो जाता है. लाहौर कलंदर में क्यों उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस विद द बैट एंड बॉल थी क्योंकि उनकी टीम भी अच्छी थी, उसके गिर्द भी बहुत अच्छे प्लेयर थे. यहाँ पे थोड़ा सा आई फील के पिछले मैच में भी यू नो ही फेल्ट दैट प्रेशर कि मैं ही हूँ, मुझे ही जितवाना है वरना मुश्किल हो जाएगी. ऑल्दो पाकिस्तान के लिए मैसेज ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना. कॉन्फिडेंस इज वेरी गुड, यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट विल बीट नामीबिया, लेकिन ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि सम टाइम इस तरह के प्लेयर जो वीजे टाइप प्लेयर होते हैं दे कैन टेक गेम अवे फ्रॉम यू in couple of overs. बिल्कुल आई एग्री विद यू, बट ऑल्सो जो क्वेश्चन आजकल सारे पूछ रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से द क्रिकेट लवर्स इन पाकिस्तान और क्रिकेट लवर्स पाकिस्तानी लिविंग अब्रॉड, के उनके क्वेश्चन जो 2-3 मोर इम्पोर्टेंट हैं, वो क्वेश्चन ये है कि क्या हसन की जगह किसी और को खेलना चाहिए, या यू नो हफीज की जगह हैदर को खेलना चाहिए, या रेस्ट कराना चाहिए. आई थिंक यू गाइज आर प्रेजेंट, ऑल 3 of you. What do you think? वहाब, start off with मेरा नहीं ख्याल वसीम भाई के कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहिए. कल हमने इंग्लैंड को भी देखा, दे हैव प्लेड विद द सेम टीम अंटिल अनलेस दे वांट मार्क वुड. हसन और हफीज भाई, आई थिंक people are talking too much about them. It's fine, it's only 1 or 2 games where they couldn't perform, but we know that they are the match winners. And as a captain, or if you ask me, I will never make them boys sit outside because they need that confidence behind them. Exactly. They need the team behind them. The more they play, the more they will get their confidence. So I think पाकिस्तान को सेम टीम के साथ जाना चाहिए until unless आपको ये पता हो कि आपने आगे जाके कोई चेंज करना है, which I cannot see right now, and I do not want to see any changes. So मिसबा, इससे ये भी तो वकार, इससे ये भी तो प्रेशर पड़ सकता है टीम पे या कप्तान पे या जो आपकी सिलेक्शन कोच सिलेक्शन जो आपकी प्लेइंग 11 में आते हैं. अगर आप फॉर इंस्टेंस आपने वसीम को खिला दिया हसन की जगह फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, एंड देन वसीम गेट्स 4 wickets and 60 runs, and then you as a captain, as a selector, और जो प्लेइंग 11 में आते हैं, will be in 2 minds. बिल्कुल, मैं हमेशा ये आप लीग्स में भी देखें, टीम में जब पहुंच जाती हैं तो वो आखिरी इस्लामाबाद के साथ हुआ, वो आखिरी 1-2 मैचेस में चेंजेस करती है, एंड दोज मैचेस आर विदाउट एनी प्रेशर. और समटाइम्स थोड़ी सी वीक पोजीशन के अगेंस्ट कोई कर जाता है परफॉर्म, और वो बेसिकली वो परफॉर्मेंस आपकी टीम की अच्छे के लिए नहीं होती, वो आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन आ जाती हैं और आपको लगता है कि अब क्या करें, वो आपके लिए उल्टा डिफिकल्टी हो जाती है कि वो एक बंदे ने रन्स कर दिए, आउट कर दिए हैं. फाइनली यू शुड नो एग्जैक्टली विच इज योर बेस्ट 11. आपके जो 15 हैं उसमें से बेस्ट 11 आपका कम्बिनेशन देखते हुए, एक्सपीरियंस देखते हुए, बॉलिंग का कम्बिनेशन देखते हुए, उनके जो रोल्स हैं उनको देखते हुए, जो बेस्ट 11 यू शुड नो दैट. और इस ऐसे टूर्नामेंट के अंदर कभी भी आप अपना मोमेंटम, अपना कॉन्फिडेंस टीम का हिकअप कभी भी ना करें, क्योंकि इट्स अ वर्ल्ड कप. नमीबिया इस फॉर्मेट में भी नमीबिया उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर हैं, वो नया बॉल बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके पास लेग स्पिनर भी है, उनके पास ऑफ स्पिनर भी है, हर मैच में उनके पास लेफ्ट, दे आर अ कंप्लीट टीम. ठीक है, वो उतनी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप उनको जरा सा भी कहीं मौका देंगे, एक चीज ध्यान में रखिएगा, दे हैव नो प्रेशर. Right, so आप अपने आप को प्रेशर में ना डालें, बस. Very good point. Quickly, because वसीम ने बड़ा अच्छा सवाल किया था, वहाब absent because again you're one of the current team members. I want to ask you this. क्या
ओवर कॉन्फिडेंस की भी वकार ने बात की, कंप्लेसेंसी, हम तो मैचेस तीनों जीते हुए हैं, वो नामीबिया है, हल्की टीम है, कंप्लेसेंसी सेट हो जाती है क्या? ऐसी मिसकैलकुलेशन इंडिविजुअली हो जाती है टीम में किसी से? सर देखिए, इवेंचुअली अगर आप देखें तो देर इज हार्डली एनी मैच नामीबिया वर्सेस पाकिस्तान, नोबडी इज एक्सपेक्टिंग इट, बट that does come to your mind. Okay, fine, it's a team where they are coming for the first time. They might not be as good as we are, so we will beat them. ये चीज़ ठीक है, but when on the ground you never know, because हमारे साथ आयरलैंड में 2003 में ये हुआ है exactly. बिल्कुल ठीक है, उसके अलावा हमने और भी बहुत ज़्यादा अपसेट्स देखे थ्रू आउट। होता क्या है कि you never know कि जो आप पिच पे जाए, आज पिच कैसा खेले, पिच रिपोर्ट आ जाती है, मे बी देयर इज सम मोर सीम, मे बी दे आर बॉलिंग फर्स्ट, सीम जो है दैट इज इन देयर फेवर बिकॉज उनकी वो मीडियम पेसर्स आर, दे आर यूज्ड टू ऑफ इट एंड ऑल दैट स्टफ। सो यू नो मेंटली यू कैन नॉट राइट एनी टीम ऑफ, करेक्ट, राइट? यू स्टिल हैव टू विन, you will win by playing some good cricket. Absolutely. Waqar, one question to you before I take you to Abu Dhabi. आपने कहा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, मिसबा ने, सब ने इस बात पे यूनिलैटरली वसीम के सवाल पर यही कहा कि नई टीम को चेंज नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखनी चाहिए, बट बिकॉज हम एक ऐसे ऑपोजिशन से खेल रहे हैं जिनके पास अच्छे बॉलर्स भी हैं, सब कुछ है, मे बी बैटिंग ऑर्डर को जो एग्जिस्टिंग टीम है उसी को थोड़ा शफल करके थोड़ा कुछ देखा जाए, चूंकि हमारे मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा मौका चाहिए मेरा ख्याल है खेलने के लिए। डू यू थिंक मे बी दैट कुड बी अप्लाइड हियर? देखिए, हम मोर और लेस सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, ठीक है ना? मैथमेटिकली अभी नहीं, मोर और लेस क्वालिफाई कर गए हैं, तो हम व्हाट वी कैन डू इज विच माय आइडिया और माय थिंकिंग के यू नो आपके कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो फॉर्म में नहीं है, यू नो गिव देम दैट अपॉर्चुनिटी। मेरी मिसबा के साथ भी थोड़ी सी पीछे बैठे बात हो रही थी कि वो ये कह रहा था व्हाई टू चेंज दैट। मैं ये कहता हूँ, मेरा मानना ये है कि अगर ओके हफीज है ना, आई फील कि हफीज इज योर मेन मैन, he bowls, you can't drop him, very simple, you can't drop him because he bowls also, so you want कि उसकी फॉर्म वापस आए। उसकी फॉर्म कैसे आएगी? थोड़ा सा ऊपर जाके, थोड़ा सा ऊपर, कुछ ज्यादा ओवर मिलेंगे, you mean 3 पे आ जाए, 3 पे आ जाए, बट if you brave enough you can send him as an opener also, but मैं ये कहता हूँ कि उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए, he might fail, that might be another problem, but इस मैच में अगर आप उसको ऊपर भेज के उसको थोड़ी सी टाइम देंगे क्रीज पर, सो ही इज अ काइंड ऑफ अ मैन हु विल वंस ही गेट्स इनटू फॉर्म, आपका सोचें कि पाकिस्तान टीम का कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड हो जाएगा कि उसकी फॉर्म वापस आ जाएगी। ऑलराइट दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं बराह रास्त दी अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम और नजर डालते हैं पिच और मौसम के ऊपर। So we've got a fresh pitch there and it's hot and humid. वहाब, वसीम भाई बेहतर बता सकते हैं पिच का। वसीम भाई क्या बताया ना उन्होंने पिच रिपोर्ट में, इट्स फ्रेश, इट्स हॉट एंड ह्यूमिड। What sort of pitch report was that? ये ड्रोन चलाएं यार, हमारा ड्रोन पहुंचा, चलाएं, हमारा ड्रोन है, जरा हम खुद करीबी ग्रास भी ज्यादा है। ये देखें, ये जहां पाकिस्तान का मैच आता है बांग्लादेश का विकेट पे घास रख देते हैं। ये कुछ है, ट्राई हो रहा है क्या? बिकॉज नमीबिया के खिलाफ ये पैसी पिच में इतने घास में उनके बॉलर ढूंढते इस तरह की पिच है जो हल्का हल्का 120 किलोमीटर an hour। लास्ट मैच में उनके कप्तान ने कंप्लेंट किया था ना कि अब अफगानिस्तान से मैच है तो नॉर्मली ऐसी पिच नहीं होती, ग्रास होता है, ग्रास पता नहीं किधर गया। ये पहला मैच है दोस्तों बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका की तरफ से ऑफकोर्स नोकिया उनके फास्ट बॉलर है। अभी तक नोकिया को इस टूर्नामेंट में जो सुपर 12 में एक भी छक्का नहीं लगा। ही इज बीन दैट फैंटास्टिक। आज भी नहीं लगना ऐसे देख के। छक्कों की बात आई तो आसिफ अली ने अभी तक 19 गेंदें खेली हैं इस टूर्नामेंट के अंदर और 7 सिक्सेस मारे हैं उन्होंने। यू नो दैट्स आज तो आप स्टैट्स आपके मुंह से पिघल रहे हैं, माशाल्लाह पिघल रहे हैं। So that's a good thing. Also, another very interesting thing is that this Wasim is a very good stat. You need to understand. Asif has hit 245 sixes in T20 cricket. Yes. The third most by a Pakistani batter. Shahid Afridi has hit 252. So Asif और उनके बीच में अब कोई तकरीबन 7 छक्कों का फर्क रह गया. Which you know who's hit the most sixes? You have to give us a clue. Shoaib Malik. And guess what? 336. 336. I mean, just a misal. I have no idea, Waqar, where this came from. Basically. So with that, we take a break. We'll see you on the other side of the break. Keep watching The Pavilion on A Sports and 10 Sports.
Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखरे आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स आर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। आज अबू धाबी में 2 मैचेस हैं। पहला मैच जो है वो साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के दरमियान, दूसरा पाकिस्तान और नमीबिया। पाकिस्तान और नमीबिया के बीच में ये पहला T20 मैच है जो खेला जाएगा। बात कर लेते हैं बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की मैच की, चूंकि पहला मैच है। Wasim, it's very clear now for Bangladesh, the road is pretty much, this is over. Yeah, takriban. Takriban. Yeah, they've lost 3 games. They've lost 3 games. And Shahid Hassan, their main man, that one man army that they're so much, जिसपे इतना डिपेंड करते हैं, वो आउट हो गए, हैमस्ट्रिंग का उनका प्रॉब्लम हो गई है. Where does this leave Bangladesh? They have to go back and think hard. As a cricket board, as a team, they need to find new batsmen, they need to find fast bowlers, and they need to have good pitches during their domestic. They don't want big turners all the time. जब आप नॉर्मल पिचों पे खेलोगे, इतना तक गज टर्न होगा नए गेंद से भी, तो कौन फास्ट बॉलर बनना चाहेगा? और बैटिंग में लिटन दास ठीक है, आप लोगों को पसंद है, मैं इसको पिछले कोई 10 साल से तो देख रहा हूँ लिटन दास को। मजा ले चल गया हुए है, जे मीदा चल गया, मीदा नहीं चल के दे रहा, नहीं चल के दे रहा। इनके पास होंगे यार क्रिकेटर, और या वहाँ यू सी आई रिमेम्बर व्हेन आई बांग्लादेश में पहली दफा लीग खेलने गया था वहाँ, ढाका लीग from Abani club. Clubs are big in Bangladesh, Dhaka still. Abani, Mohammedan, और भी हर एक की उनकी टीमें हैं, फुटबॉल की, क्रिकेट की, हॉकी की, they have proper grounds. So जब मैं पहली दफा गया वहाँ 94 में to play this league cricket, फिर मेरा टाइम मिला to move around in Dhaka and outside Dhaka. तो आप outskirts जब जाते थे, आप देखते थे fields पे people are, all the youngsters were playing football. Right. That was early 90s, mid 90s. Right. But I went there 10-15 years ago, World Cup 2011 वाले पे, and everyone was switched to cricket. So they are cricket crazy nation now, so they got to have better batsmen and bowlers there somehow. And I think mindset has to change in my opinion. सबसे बड़ी बात ये है कि जो फायर पावर चाहिए T20 क्रिकेट के हवाले से, वो नहीं है बांग्लादेश के पास। ऊपर से भी अगर आप देखें तो उस तरीके से वो पावर प्ले में उस तरह डैमेज नहीं कर पा रहे दूसरी टीमों को, और फिर नीचे उनके पास कोई ऐसे बैट्समैन नहीं है, जैसे डेविड मिलर हैं, आसिफ यहाँ से पाकिस्तान से कर रहे हैं, फिर इंग्लैंड के पास सो मैनी। तो वो एक जो वसीम भाई जो बात कर रहे हैं, वहाँ की पिचेस पे खेल के वो T20 में भी अभी तक 120, 25, 30, 40 पे वो उसी के अराउंड खेलते हैं। वनडे क्रिकेट में फिर भी उनके जो प्रॉपर बैट्समैन है खेलने वाले, वो टोटल कर सकते हैं, 6 ओवर तक खेल सकते हैं, बट 6 ओवर से 9 ओवर 10 ओवर पे कैसे लेके जाना है, जो कि T20 में आपको ज़रूरी चाहिए, वो मिसिंग है। और जहाँ बैट्समैनों की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली मुझे इमरुल कैस बहुत पसंद है, बहुत रन्स करते थे, प्रॉपर बैट्समैन भी था ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त। फिर इनके शबीर थे, एक राइट हैंड बैट्समैन, ही वाज एग्रेसिव बैट्समैन T20 क्रिकेट में, बड़े उसने मैचेस, मे बी उसकी परफॉर्मेंस ना हो, बट वो ऐसा प्लेयर था कि जो इस किस्म के स्ट्राइक रेट्स के साथ 9-10 ओवर स्कोर कर सकते हैं। And they are very passionate country. Bangladeshi people are very passionate about sports. Yes. Soccer, their domestic, their club को बड़ा सपोर्ट करते हैं। You know, पहला जब मैच खेलने गया मैं अबॉनी की तरफ से, I thought क्लब मैच है, पाकिस्तान के यूज्ड टू थे, मैंने कहा 100 नहीं तो 150 बंदा बैठा होना है। It was 40,000 people. Wow. On a club game. हाँ, club game. On a club, local club game. Gold Stadium. बंगबंधु स्टेडियम। मुझे अभी याद है 2001 में मैं जब पहला टूर था, अंडर 17 एशिया कप था बांग्लादेश में, तो हम अंडर 17 की टीम किसी गाँव वाली साइड पे गए थे मैच खेलने, प्रैक्टिस मैच। वसीम भाई, ग्राउंड छोटा सा था, नहीं कहीं पे था, आई डोंट नो एग्जैक्टली, और वहाँ पे जो है की ड्राइव थी ढाका से, नहीं वो तो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो नहीं है, कोई गांव साइड थी किसी उस तरफ, और उधर हम गए थे, तो वहाँ पे हमारा अंडर 17 का मैच देखने के लिए 8,000 लोग थे। Wow, that's great. That's the passion that we want to see around the world for cricket. But एक तरफ बांग्लादेश के जो problems हैं वो हमारे सामने हैं, यकीनी तौर पे उनका बोर्ड जो है इस पे नजरसानी करेगा। Of course, they love their sports and they love their cricket. So I'm sure that the Bangladeshi fans are going to be asking a lot of questions of their cricket board. But on the other side, it is South Africa that is in the hunt for a semi-final spot as well. And they're going to be coming in all guns blazing. We've got David Miller with us right now. Let's listen in. There you have it, David Miller there. Points table पे जरा नजर डाल लेते हैं इस ग्रुप की, because South Africa, as I said, is not number 2, but look, they've played 3 games, they've won 2, they've lost 1.
तो ये इनका चौथा मैच होगा। इंग्लैंड ऑफ कोर्स चारों मैच अपने जीत चुका है, 8 पॉइंट्स के साथ बैठा है, बट ऑस्ट्रेलिया सेम प्लेस, they've got 4 points as well. So this is an interesting position. If they win today, there's every chance they're the favorites. The way they're playing their cricket, बांग्लादेश साइकोलॉजिकली भी गिरे होंगे, मेंटली भी गिरे होंगे। अब ये देखें, ये इनके फिर जब 6 पॉइंट हो जाएंगे, रन रेट इनका ठीक है, बट ऑस्ट्रेलिया को फिर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि यू नो ऑस्ट्रेलिया के साउथ अफ्रीका, because Sri Lanka is kind of out, am I right? बिल्कुल, Sri Lanka most probably is out of the competition right now because they cannot make it up with their run rate and points. South Africa अगर आज का मैच जीत जाता है तो बिल्कुल Australia will be under pressure because Australia still has to play West Indies. What about West Indies? West Indies has to beat Australia and they has to beat even Bangladesh, I think, or Sri Lanka. They also got a fair chance. But the chance, the run rate will matter. लेकिन अब अगर देखा जाए, अगर आज साउथ अफ्रीका जीतता तो दैट इज एन एडिशनल प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज देन ऑस्ट्रेलिया हैज टू विन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज फॉर श्योर टू स्टे इन द कंपटीशन एंड दे विल आल्सो बी thinking that England beat South Africa, so the way should be very clear. Otherwise, if South Africa will beat England, so South Africa and England will make into the semis. All right, and with that, we're going to take a break here on the Pavilion. आप देखते रहिए Sports and 10 Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. When we come back, we'll be going towards the toss for the first game, South Africa versus Bangladesh. Stay tuned. वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखरे आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स। अभी ब्रेक पे एक ट्वीट का जिक्र हुआ था। Let's move on. In the pavilion, we've got the Pakistani legend superstars Wasim Akram, Waqar Younis, Misbah-ul Haq and Wahab Riaz. और हम बात कर रहे हैं जो पहला मैच होने लगा है अब से कुछ देर बाद, बांग्लादेश का मुकाबला साउथ अफ्रीका। बांग्लादेश की टीम की प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात कर रहे थे। वसीम ने बड़े अच्छे तरीके से बताया बांग्लादेश में कितनी मोहब्बत है क्रिकेट के खेल के साथ। यकीनी तौर पे they'll have to revisit their policies, their entire approach towards setting up a new team, I guess, restart, reset. Wasim, I think वो पॉलिसीज हमने भी बनानी है। क्रिकेट तो हमारी तो चल रही है, बाकी स्पोर्ट्स में जी हाँ अल्लाह करे हमारे जिंदगी में इस तरह की चीजें हो जाएं। I hope, and we have a lot of hopes with A Sports now for bringing that momentum into Pakistani sports and making things happen. South Africa पे हम बात कर लेते हैं वहाब। South Africa, वो हमने पॉइंट्स टेबल देखा, दे आर इन द हंट फॉर दैट सेमीफाइनल पोजीशन। ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर पड़ जाएगा इस मैच के बाद अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता है। व्हाट हैपेंस टू साउथ अफ्रीका अगर आज वो नहीं जीतता है? आई मीन व्हाट हैपेंस देन टू द इक्वेशन? देखिए, अगर वो आज मैच नहीं जीतते तो देन दे हैव टू विन द मैच अगेंस्ट इंग्लैंड फॉर श्योर, क्योंकि उसके बाद ये होगा कि दे विल आल्सो बी वेटिंग के जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी एक आधा मैच किसी और टीम से, वेस्ट इंडीज उनको हरा दे, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल। बट अगर आप देखें ओवरऑल इस पूरे ग्रुप में इंग्लैंड वो हैज़ बीन एक्सेप्शनल, बट साउथ अफ्रीका ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, आई थिंक दे वर वेरी अनलकी इन द फर्स्ट गेम, बट द वे दे आर फाइटिंग इट आउट, उनके प्लेयर्स, उनका मिडल ऑर्डर, उनके फास्ट बॉलर्स, उनके स्पिनर्स, you know, they have made an impact on this World Cup, especially Nokia की अगर हम बात करें, रबाडा we know that he is amazing। उसके बाद शम्सी ने जिस तरह कल आके लास्ट मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट 4 ओवर में 13 रन दिए किसी एशियन टीम के, so see their confidence is sky high, plus the most advantage they had is about their fielding, they have finisher in their team like डेविड मिलर, और फिर अभी क्लॉसन को जो है वो बाहर बैठना पड़ा है क्योंकि जो रीजा हैंड्रिक्स हैं वो आए हैं, सो यू नो दे हैव अ वेरी गुड बैटिंग लाइनअप, देयर आर कंप्लीट साइड फुली कवर्ड, दे आर प्लेइंग सम गुड क्रिकेट, सो आई विल फैंसी साउथ अफ्रीका over Australia that they should come and play those semi-finals because they have a chance of winning this World Cup the way they are playing. You're being very mean to Australia, okay? I am always mean to Australian people though as well, even though who are living there. See that? So this is the love I get from him. मैं वो देख रहा हूँ। No, it's not about Australia. I know Australia is, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम में ना हमने देखा कि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, but अभी they are not right on the top of their game. Maybe England have outclassed them, but you know एक नजर आता है कि एक टीम में आपको कॉम्बिनेशन एक चीज नजर आ रही होती है कि वो हर एक चीज, हर एक गैप, हर एक फेज में यू नो दे हैव एवरीथिंग कवर्ड। वो चीज जो है ना वो साउथ अफ्रीका में हमें नजर आ रही है कि अगर
वेंडरडूजन स्कोर नहीं कर रहे तो नीचे से मार्करम है, ऊपर से रीजा हैंड्रिक्स है। अभी लास्ट मैच में हमने उनके कैप्टन को देखा, उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स के लिए एंड तक गए मैच को लेके। उसके बाद डेविड मिलर का कह रहे थे ही फिनिश द गेम ऑफ। Nokia outstanding bowling. Maharaj is bowling really I'm going to have to stop you there, Wahab, because both the captains are out and getting ready for the toss. We're taking you back to the Abu Dhabi Stadium for the toss. राइट दोस्तों, अबू धाबी से खबर, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। बांग्लादेश जो है वो पहले बैटिंग करेगा। अब ये टारगेट की बात हो जाएगी। एक सवाल है आपसे मिस, लेट मी आस्क यू, ब्रिंग दिस वन टू यू। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या आज पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए सो दैट दे प्रिपेयर के इन केस अगर आपको दूसरे रिंग में बॉलिंग करनी पड़ जाए, डिफेंड करना पड़ जाए। कौन कह रहा है भाई ये? बस अभी वो आता हूं मैं आपके पास एक मिनट पे। देखिए बात ये जो हमने पहले बात की कि आपकी एक चीज़ चल रही है, कॉन्फिडेंट हैं आप जिस चीज़ में, और कोशिश करें कि उस मोमेंटम को आप कैरी ऑन करें। ठीक है, बैटिंग आ जाती है, फाइन, बट व्हाई यू शुड बी डूइंग दिस? मे बी आखिरी मैच में आप कर सकते हैं, आज का मैच जीते और फिर उस मोमेंटम को लेके चले, एंड देन लास्ट गेम यू सी व्हाट्स हैपनिंग एंड यू कैन डू दैट। और वसीम, आपसे सवाल ये है कि क्या आज के मैच में शाहनवाज धानी को और नजीर को ट्राई कर सकते हैं? ये हसन चीमा ने मेरे से क्वेश्चन पूछा ट्विटर पे कि क्या आज शाहनवाज धानी और इमरान नजीर खेल सकते हैं? अगर आप मेरे पास होते तो मैं लिथर उतार लेता। साथ वो भी लगा। अच्छा जी, टीमों में नजर डाल लेते हैं। द प्लेइंग 11 ऑफ द फर्स्ट मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश। ये रही जनाब पहले बांग्लादेश की टीम। वकार, बांग्लादेश की टीम। भाभी गो अहेड, यू नो बेटर देन मी। आज ही करके मैच आज है। शमीम हुसैन भी खेल रहे हैं। उनकी टीम में जो है ना वो दो चेंजेस हैं। आज उन्होंने मुस्तफिजर को कह रहे हैं कि रेस्ट करवाया, और साकिब ऑब्वियसली जो है वो अनफिट है, तो नसुम आए हैं स्पिनर साकिब की जगह, और शमीम को उन्होंने रखा है एज एन ऑलराउंडर मुस्तफिजर की जगह। बट बात वही आ गई है कि इनका जो बैटिंग ऑर्डर वो इतना ज़्यादा अच्छा क्लिक करने रहा। लिटन इज़ नॉट इन अ गुड ऑफ द फॉर्म्स। सोमिया जो है उसने पिछले मैच में थोड़ा सा अच्छा खेला है, महमूद अल्लाह ने थोड़ा सा अच्छा खेला है। मुस्तफिजर जो है उस पर वो डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सका। बट कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लग रहा है कि आज थोड़ा सा जो मैच है दे हैव ऑलरेडी गिवन इट अवे। आई डोंट नो व्हाई दे वुड हैव टू रेस्ट मुस्तफिजर, बिकॉज वो उनका मेन बॉलर है। इनके पास स्क्वाड में रूबल भी तो है। रूबल भी है, वो एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ, घास वाली विकेट, घास वाला विकेट। अब आई डोंट नो कि क्या वजह है इसके पीछे, क्योंकि अगर आपका कोई मेन बॉलर है, यू हैव टू प्ले फॉर योर प्राइड। I mean, they have 3 coaches: the head coach, the batting consultant, the bowling consultant. They might be thinking कि शुरू में थोड़ा सा ग्रीन है ग्रास, और उसके बाद it might not give them that much of an opportunity to for the अगर आप bowler. देखें वो सोमिया सीन करता है, सोमिया बिल्कुल करता है, बट आई मीन ही कैन बोल इन अ वनडे गेम, ही कैन बोल इन अ टेस्ट मैच में भी थोड़ी बहुत बॉलिंग करता है। T20 इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ गेम। ऐसा मीडियम पेसर कोई भी उसको स्पेयर नहीं करेगा, जब वो आएगा तो दे विल अटैक हिम। और ये साउथ अफ्रीका हुसैन है, ये क्या है, ऑफ स्पिनर है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ऑफ स्पिन साथ करता है। अच्छा जी, साउथ अफ्रीका की टीम। साउथ अफ्रीका की टीम सेम है, डी कॉक, हेनरिक्स, वेंडरडूजन, बोआमा, मार्करम। आई थिंक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है इनका। अगर आप देखें तो नंबर 7 तक इनके पास बैटिंग है, प्रेटोरियस तक, और प्रेटोरियस हिमसेल्फ स्पेशली इन मैच में रबाडा ने छक्का कराया आखिरी ओवर में। एग्जैक्टली, रबाडा ने भी अच्छा किया। इवन के महाराज भी छक्के मार लेते हैं, बट एक जो प्रॉपर है वो रबाडा हैज इम्प्रूव्ड हिज बैटिंग अ लॉट। अगर आप देखें तो वो इतनी जल्दी अपनी विकेट नहीं देता, लेकिन मिलर का फिट होना उनके लिए दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ब्लेसिंग, बिकॉज ही इज अ फिनिशर ओवर देयर। सारी टीम अच्छा खेल रही है, दे आर हैविंग अ स्टार्ट। मार्करम इज बीइंग वंडरफुल, ही इज द मैन दे मस्ट बी लुकिंग एट, बिकॉज ही इज स्कोरिंग रन्स, particularly जब रन रेट ऊपर भी चला जाता है तो ही इज द वन हु रियली cope with those situations, and he is performing. He is not like लास्ट मैच में वो आउट जरूर हुआ सरंगा से, बट वो एक इम्पॉर्टेंट जो इनिंग्स थी 13 रन की, क्योंकि स्कोर ज़्यादा कर रहा है, बॉलें कम ले रहा है, स्ट्राइक रेट ज़्यादा है, और मिडल ऑर्डर में अगर आपके पास कोई ऐसा बैट्समैन है सो दैट्स अ गुड ब्लेसिंग। मुझे लगता है कि वैसे यहाँ पे जैसी कंडीशंस हैं और बांग्लादेश के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, लेफ्ट हैंडर काफ़ी हैं, महाराज की जगह फास्ट बॉलर खिला सकते थे,
but I don't know, they don't want to just disturb their combination. शुक्र है उनके पास पाकिस्तानी हमारे क्रिकेट फैंस नहीं है, नहीं तो उन्होंने 3-4 नु रेस्ट करा देना सी, 2-4 नु खिला देना सी। लोग कोई पता नहीं दानी को वहां से खिलवा दे वैसे जिस तरीके से जा रहे हैं, जिस तरीके से जा रहे हैं। और राइट, वो हमने पर्चियां भरनी थी, स्कोर भरने थे, वो हम नहीं भर रहे, चूंकि टाइम नहीं है। मैं बाद में ग्रीन रूम में आपसे ले लूंगा आफ्टर द वी गो बैक टू एंड वी कैन गिव मी दैट। आफ्टर फर्स्ट इनिंग्स नहीं हो सकता, अभी देना होगा आपको, लिख कर देना होगा स्कोर। दोस्तों मैं तभी जीत सकता हूँ। जी हाँ, सिर्फ बैकडोर में यार जस्ट दोस्तों हम आपको लेके जा रहे हैं बराह रास्त अबू धाबी, जहां पे पहला मैच है बांग्लादेश में मुकाबला साउथ अफ्रीका, उसके बाद दूसरा मैच पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया। आप लोगों से रात को मुलाकात होगी। देखते रहिए ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप।